कहते हैं ना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। वैसे ही आज हमारे एसएसबी क्रैक टॉक्स में आने वाले हैं एक ऐसे विनर जिनके साथ हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने दो दो बार फेलियर फेस करने के बावजूद भी ये ठान लिया था कि रिकमेंडेशन तो मिलना ही मिलना है। और उनका सपना भी सच हुआ, बिकॉज ही गॉट recommended from TES 48 entry and he's going to join the academy very soon. So let's welcome today on our episode of SSP Crack Talks, Mr. Karan Singh Negi, who got recommended very recently from the TES entry after facing two failures back to back from the SSB itself. Hi Karan, how are you? Good morning, ma'am. I am fine, ma'am. Okay, nice. So Karan, thank you for coming into our platform and giving your precious time to share all your experiences here with the viewers. And I want to congratulate you on behalf of SSB Crack Talks and SSB Crack exams for your future endeavor. May your future shine brighter than ever. Thank you, ma'am, for inviting me in this SSB Crack Talks. It's our pleasure. So Karan, before we start with all the questions and everything, I want you to tell something about yourself to the viewers. Hello, everyone. Myself, Karan Singh Negi. I belongs to Kurdwara, Pauri district of Uttarakhand. I recently passed my class 12 this year. After that, I have taken the drop for my backup plan JEE examination. I come from the defense background. My father have retired from the Indian Army and also my grandfather. My mother is a housewife and I have one sister. Currently, she is studying in class 12th. If I talk about my SSB journey, this was my third attempt in which I got recommended. In my first attempt, I got screened out from 3 FSB Gandhinagar in the NDA 148 entry. Then in my second attempt, I got conference out from 1 FSB Dehradun for the NDA 149 entry. And this time I got recommended for the TS 48 entry from 31 SSB Kapurthala. That's great. Congratulations for that, Karan. Okay. So my first question to you, Karan, is that from standard 4, आपका मन था कि armed forces join करने का, right? Your dream has come true. You have been recommended for your TES 48 entry. How are you feeling? I am feeling the great as I will become the first generation officer from my family and also अपने स्कूल का पहला स्टूडेंट रहा हूँ जो कि एसएसबी में रिकमेंड हुआ है, तो काफी खुशी हुई रिकमेंड होने के बाद. राइट. तो आप अपने थर्ड अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिला है एसएसबी से. तो पहले दो अटेम्प्ट में यू जस्ट नाउ सेड यू वर स्क्रीन्ड आउट वंस एंड यू वर कॉन्फ्रेंस आउट. तो क्या अलग आपने इस अटेम्प्ट में किया जिसके वजह से यू गॉट द रिकमेंडेशन? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इस बार ही थोड़ा लेस डेस्परेट था मैं एसएसबी को लेकर. मींस जब पहले 2 बार अटेम्प्ट्स में गया तो उस समय ऐसा था कि इस बार तो पक्का रिकमेंड होना ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए. लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं थी. इस बार मेरा माइंडसेट ऐसा था कि बस जस्ट अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा. एंड प्लस अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव की. और जैसे कि अगर मैं एसएसबी टेस्ट की बात करूं, जैसे हमारा साइक टेस्ट है, तो पहले मैं काफी प्रैक्टिस करता था, ओवर प्रैक्टिस करने लगा था साइक टेस्ट की. बट इस बारी मैं बहुत ही लेस प्रैक्टिस की थी साइक टेस्ट की. प्लस इंटरव्यू की बात करूं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो मैंने इस बारी काफी ज्यादा करके गया था और थोड़ा नॉलेज पार्ट भी अपना इंक्रीज करके गया था. Okay, so many things differently you have done, all the self introspection and not so much practice. So I hope कि जो viewers ये देख रहे होंगे, ये एक बहुत important चीज है जो करण ने किया यहाँ पे, तो आप लोग भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने आने वाले एसएसबी के लिए. So करण, my next question is कि जब आप, क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एंड ऑल द व्यूअर्स हियर वांट टू नो, जब आपने अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स को ये न्यूज़ दिया कि आई हैव बीन रिकमेंडेड, ओके, माय नेम इज देयर इन द लिस्ट, तो उनका रिएक्शन कैसा था? अगर मैं अपनी एसएसबी की 5 डेज के ऊपर जाऊं तो मेरी हेल्थ थोड़ा खराब हो गई थी एसएसबी में. स्टेज 1 तक थोड़ा ठीक थी, बट अगर मैं स्टेज 2 की बात करूँ, नेक्स्ट जो 4 डेज थे, तो उसमें मैं सिर्फ पानी पी रहा था, फ्रूट्स खा रहा था, मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी काफ़ी ज़्यादा. तो हमारे रूम से थोड़ा मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन लिए थे मैंने, तो उस वजह से थोड़ा वही था कि जब मैंने अपने फैमिली को बताया, वहाँ पर हमारा एक साइबर कैफे होता है एसएसबी में, तो वहाँ से हम अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं या फ्रेंड्स को. तो मैंने बताया घर पे कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, ऐसा है. तो
उन्हें ऐसा लगा कि हाँ मेरे टास्क अच्छे नहीं जा रहे होंगे, तो वही है, जब रिकमेंडेशन का बताया तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था, काफी सारे सभी खुश हो गए थे, फैमिली फ्रेंड्स, तो ये था। ओके, सो दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, यस। यस वो मैम। सब लोग बोलते कि मेरा तबीयत खराब हो गई, इसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस में देयर वाज एन इम्पैक्ट ऑन इट, बट आपका तो लाइक इट वेंट ओवर द हेड, राइट? यस मैम। रिकमेंडेशन मिल गया आपको, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला फॉर जॉइनिंग द डिफेंस? मोटिवेशन, जैसा मैंने बताया भी कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, पापा भी दादा भी दोनों डिफेंस में रह चुके, तो मुझे अपने चाइल्डहुड से ही पता था इस एनडीए टीएस इनके बारे में, तो वही था, वहीं से मोटिवेशन आई। प्लस जैसे कि कभी आरडी परेड्स देख ली, रिपब्लिक डे परेड, 15 अगस्त परेड, तो जब मैं कुछ एयरक्राफ्ट्स वगैरह देखता था तो उसकी तरफ भी थोड़ा अट्रैक्शन गया कि हाँ मुझे फ्लाइंग करनी है, एविएशन में जाना है बड़े होके, और डिफेंस में, तो यही था मेरे मोटिवेशन का सोर्स। ओके, राइट। तो आपके फर्स्ट दो जो अटेम्प्ट्स थे वो एनडीए के अटेम्प्ट्स थे, और उनके लिए यस आपने मैम। एयर फोर्स को चुना था एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन इस बार आपको रिकमेंडेशन मिला टीएस 48 एंट्री के लिए, जो कि यस एक मैम। आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए है। तो क्या इसके वजह से आर यू फीलिंग सैड और एनी डिफरेंस दैट यू आर फीलिंग? नो मैम, इन द एंड आर्मी एयरफोर्स दोनों ही डिफेंस का पार्ट है, तो वो जस्ट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मेरे को एक फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है इंडियन एयरफोर्स में, बट आर्मी मिल रही है तो कोई नहीं, आई विल ज्वाइन दैट, सो दैट्स इट, कुछ डिफरेंस नहीं है, इक्वल है फॉर मेरे ओके, लिए। so you're taking all the forces equally, which is यस मैम। obviously a great. यस Okay, मैम। अभी आप दो बार consecutively फेलियर्स फेस किए थे, जैसे अभी आपने कहा कि स्क्रीनड आउट हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस आउट, ये बार बार फेलियर फेस करने के बावजूद भी यू वर कीप ऑन, लाइक यू वर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। तो आपके अंदर ये जो आग है कि नेवर गिव अप, ओके, ये कैसे आप जला के रखे थे? आई मीन व्हाट यू डिड or what things you read maybe that really helped you in your motivation? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, पहले से ही एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन रहा हूँ, प्लस इट वाज जस्ट माय थर्ड अटेम्प्ट, दो ही फेलियर्स देखे थे मैंने लाइफ में, और उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। अगर मैं, जैसे मैं काफी सक्सेस स्टोरीज पढ़ता हूँ, तो काफी लड़के 17th अटेम्प्ट, 20th अटेम्प्ट काफी में रिकमेंड होते हैं, तो ऐसा मैंने उस फेलियर्स को कुछ ऐसा देखा नहीं, उनसे बस सीखा और इम्प्रूव किया। Okay, that's really nice. Self motivation is the ultimate motivation जो हम बोलते हैं, क्योंकि लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं मोटिवेट करते हैं आपको, कुछ कुछ डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनना, अपनी बात सुनना है, राइट? यस मैम। ओके, राइट। तो आपने एनडीए एसएसबी के लिए भी आप अटेम्प्ट्स किए, आप एसएसबी गए एनडीए एंट्री के लिए और टीएस एंट्री के लिए भी गए थे। क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आया था दोनों टाइप के एसएसबीज में? Yes, ma'am. There is a little difference between the AFSB and SSB, but अगर मैं particularly NDA और TS की बात करूं तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, सारे टास्क सेम होते हैं, बट AFSB और SSB में एक चीज का डिफरेंस है कि AFSB में जो हमारा स्टेज 2 का साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो फर्स्ट डे पे इवनिंग के टाइम हो जाता है, बट अगर मैं आर्मी के SSB की बात करूँ तो वो सेकंड डे से स्टार्ट होता है साइक, तो ये डिफरेंस था। बाकी सारी चीजें सेम थी, बस एक चीज और है कि जैसे एनडीए में वैकेंसी ज्यादा है तो वहाँ सिलेक्शन रेट काफी ज्यादा होता है और रिपोर्टिंग भी कम होती है, बट अगर मैं टीएस की बात करूँ वहां पर रिपोर्टिंग काफी ज्यादा होती है और सिलेक्शन रेट काफी कम होता है। यस, एग्जैक्टली, दैट्स द डिफरेंस। ओके, ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप तीन तीन डिफरेंट एसएसबीज अटेंड किए थे, 3 एफएसबी गांधीनगर, 1 एफएसबी देहरादून एंड 31 एसएसबी कपूरथला, राइट? तो कौन सा एसएसबी आपको ज्यादा पसंद आया था? ऑब्वियसली जो 31 एसएसबी कपूरथला था वहां पे मैक्सिमम डेज स्पेंड किए थे, 5 डेज एसएसबी के प्लस 14 डेज मेरे मेडिकल्स लिए थे, तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड वहां पर किया था, तो वही सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वहां पर जैसे कि पिछली एसएसबी थी मेरी देहरादून में, वहां पर मैं स्टेज 2 तक गया, तो वहां हमने आउट पास देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर कपूरथला एसएसबी में हम आउट पास के लिए भी जाते थे, इवनिंग के टाइम हम बाहर कपूरथला सिटी में घूमते थे। प्लस जैसे कि यहाँ पर दो बोर्ड है, 31 एसएसबी, 32 एसएसबी कपूरथला में, तो दूसरे बोर्ड के कैंडिडेट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते थे, प्लस वहाँ के जितने भी पर्सन थे, ग्राउंड्समैन या जो भी थे हमारे सीएचएम सर, जो भी सारे काफी फ्रेंडली थे, तो वो चीज काफी बढ़िया लगी मुझे। Okay, nice. So those going for 31 SSB Kapurthala can enjoy these things which Karan said right now.
ओके तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसबी कपूरथला जहां से आपको रिकमेंडेशन मिला, आई होप कि आपने शायद से बताया होगा इससे पहले कि 4 लोग ही बस रिकमेंडेड हुए थे 31 एसएसबी कपूरथला से, जहां पे 169 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था, यानी कि आप 1 आउट ऑफ द 4 कैंडिडेट्स है जिनको सिर्फ रिकमेंडेशन मिला। तो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दैट, और आप मैनेज कैसे किए फॉर बीइंग 1 आउट ऑफ 4? मैनेजमेंट की बात करूँ कि जस्ट मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, ऐसा नहीं था कि ग्रुप के साथ परफॉर्म किया। मतलब साइक और इंटरव्यू तो अपना इंडिविजुअली होता है, वो मैं अपना तरफ से बेस्ट दिया। बट अगर जीटीओ की बात करूँ तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि नहीं मुझे अलग दिखना है ग्रुप से, मैंने ग्रुप के साथ वर्क किया, परफॉर्म किया, तो बस वही था रिकमेंडेशन। तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैंने काफी ग्रुप वालों से अलग किया, बस अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, बेस्ट दिया, रिकमेंडेशन मिल गया। Oh wow, you're sounding as if कितना easy है, right? But yes, it is actually easy. ज्यादा कॉम्प्लिकेट बहुत लोग कर लेते तो उसके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, but actually it is not. Okay, आपने स्क्रीनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मैम स्क्रीनिंग का अगर मैं अंदर जाऊं तो सबसे पहले हमारा था OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंट रीडिंग टेस्ट। इसमें कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो वही था कि अपनी एसएसबी से 1 महीना पहले मैं वीक में 3-4 प्रैक्टिस सेट्स कर लेता था OIR के। एसएसबी क्रैक की एक काफी फेमस एक पीडीएफ है 20 प्रैक्टिस सेट्स ऑफ OIR, वो मैं सॉल्व करके गया तीनों अटेम्प्ट्स में, और काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन उस पीडीएफ से आते थे। अगर मैं अपनी एएफएसबी की बात करूं, जब एएफएसबी देहरादून था तो 90% क्वेश्चन उसी पीडीएफ से आए थे, मीन सिमिलर क्वेश्चन थे। तो वही था कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए थे OIR के लिए। अगर मैं पीपीडीटी के ऊपर आऊँ तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप था दोस्तों के साथ, जिसमें कि हम 10 और 11 दोस्त थे। तो हम उसमें हफ्ते में 2 या 3 बार हम पीपीडीटी प्रैक्टिस कर लेते थे, जिसमें कि हम पिक्चर शो करते थे और उसको एक टाइम लिमिट में स्टोरी राइट की प्रैक्टिस करते थे। प्लस अगर नरेशन की बात करो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीपीडीटी में। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़ना, मिरर प्रैक्टिस किया, या जैसे कि मैंने कभी नरेशन कर रहा हूँ तो उसको फोन में रिकॉर्ड किया, फिर बाद में एनालाइज किया कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो इस टाइप से मैंने अपना नरेशन इंप्रूव किया। तो यही था पूरा स्क्रीनिंग का। ओके तो आपके स्क्रीनिंग में ओआईआर से कितने क्वेश्चंस आपको मिला था और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए थे? इसमें मैम OIR के हमें 2 सेट्स मिले थे, 45 क्वेश्चंस ईच, और 30 मिनट्स का टाइम लिमिट था दोनों सेट्स को करने के लिए, एक सेट को करने के लिए। तो जो OIR पहला 1 सेट था तो वो काफी इजी था, मतलब 30 मिनट से पहले ही हमारे पूरे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। बट जो हमें सेकंड सेट मिला था वो थोड़ा लेंथी था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इवन मी। 45 में से ओनली 35 क्वेश्चन ही मैं कंप्लीट कर पाया 30 मिनट्स में। तो ऐसा OIR था। ओके सबसे ज्यादा टॉपिक्स कौन से क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है सॉरी कौन से टॉपिक से आ रहे थे ओआईआर में? अगर मैम OIR सेट 1 की बात करूँ तो उसमें डाइस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, और OIR 2 में जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं कि साइन चेंज करना, मल्टीप्लाई को ऐड कर दिया, डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। ओके तो अभी आते हैं हमारे पीपीडीटी पार्ट में। तो Yes, पीपीडीटी ma'am. में किस तरह के पिक्चर आपको दिखाए गए थे और आपका स्टोरी क्या था? पीपीटीटी में अगर मैं पिक्चर पे जाऊं तो एक रूम था, उसमें एक पर्सन अराउंड एज 30 to 40, एक फॉर्मल ड्रेस में, कोट पैंट शूज, एक सोफे में थोड़ा सा लेटा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था, और अनकॉन्शियस मैनर में राइट की तरफ झुका हुआ था, और उसकी आईज क्लोज थी, और पीछे एक बुक शेल्फ रखा हुआ था। तो मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी कि एक कंपनी का कोई मैनेजर है, तो ड्यू टू सम वर्कलोड कुछ इंक्रीज हो गया कुछ डेज से, तो उसकी जो है फटीग होने की वजह से वो थोड़ा नैप लेने लग गया अपने ऑफिस में, और उसकी हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ने लग गई। तो वही है कि उसने अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, उसने जॉगिंग करना स्टार्ट किया, साइकिलिंग करना स्टार्ट किया, और अगर कंपनी के बीच में कोई टाइम फ्री मिला तो उसमें योगा करता था, प्लस अपनी बैलेंस डाइट इंप्रूव की, फ्रूट्स जूसेस ऐड किए, और एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाया जिसमें कि एक्सरसाइज और कंपनी वर्क दोनों को मैनेज कर सके। तो फाइनली उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। तो ये मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी, और काफी कैंडिडेट्स ने भी अलग अलग स्टोरी बनाई थी, किसी ने सोचा कि वो सोच रहा है कुछ रिसर्च कर रहा है, तो ऐसी भी स्टोरीज थी। तो ये अलग अलग स्टोरीज बनाने के लिए क्या जीडी में जो पीपीडीटी का जीडी पार्ट होता है उनमें कुछ फिश मार्केट सिचुएशन क्रिएट हुआ था? यस मैम, थोड़ा बहुत फिश मार्केट, इतना ज्यादा तो नहीं होता क्योंकि मेरा ग्रुप काफी बढ़िया था। अगर मैं बात करूँ कि टीएस में अराउंड 14 to 16 बंदों का ग्रुप बनता है कैंडिडेट्स का,
तो हमारा 14 का ग्रुप बना था। तो जनरली 14 में से 1 या 2 स्क्रीन इन होते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट माय ग्रुप, 14 में से 7 कैंडिडेट्स स्क्रीन हो गए थे। तो वो काफी बढ़िया चीज थी, क्योंकि सबकी स्टोरी थोड़ा पिक्चर से कनेक्टेड थी और जीडी भी स्मूथ चला था। सारे कैंडिडेट्स एक दूसरे के सुन रहे थे, तो फिश मार्केट इतना ज्यादा नहीं हुआ था। और उसके अलावा जो हमारा 14 का ग्रुप था, पहले ही 7 में डिवाइड हो चुका था, तो वो चीज काफी एडवांटेज थी हमारे लिए। वाओ, 50% लोग स्क्रीन इन हो रहे हैं आपके ग्रुप से। मतलब यू आर अ लकी पर्सन आई वुड से करण, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि स्क्रीनिंग के टाइम में जीडी का जो पार्टिसिपेशन होता है वो ग्रुप पे डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत ज्यादा फिश मार्केट हो जाती है तो देन इट बिकम्स ऑल अ कंफ्यूजन, बट यू आर लकी इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड से। यस ओके, मैम, एक तो चीज अभी बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जैसे जीडी में कभी फिश मार्केट हो गया, तो उसमें कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी स्टोरी परफेक्ट है, नरेशन परफेक्ट है, ओआर काफी सही है, तो अगर हमने जीडी में इतना भी पार्टिसिपेट नहीं है फिर भी स्क्रीनिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर जीडी में फिश मार्केट में नहीं बोले तो फिर स्क्रीनिंग नहीं होगी। okay, right, so that's a golden tip for you people who are listening to Karan, right? So you can take this like heartily. ओके, तो अभी करण हम लोग मूव करते हैं साइक टेस्ट की ओर। ठीक है, तो साइक टेस्ट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? जैसे आप बोल रहे थे कि पहले 2 अटेम्प्ट में आप ओवर प्रिपेयर करके जाते थे, तो इस बार आपका प्रिपरेशन आप मॉडरेट कैसे रखे अपने साइक टेस्ट के लिए? साइक टेस्ट का ऐसा था कि सबसे पहले तो एक स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। एक किसी भी टीएटी की स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, व्हाट लेड टू द स्टोरी, व्हाट इज गोइंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द आउटकम। तो वही था कि पहले स्ट्रक्चर स्टोरी लिखने की प्रैक्टिस कर लो टाइम लिमिट के साथ। फिर बाद में ये था कि एक इमेजिनेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है टीएटी में, वो मैंने इंक्रीज करी बुक्स रीड करके, न्यूज़पेपर रीड करके। तो इससे मैंने अपनी इमेजिनेशन इंक्रीज की, रादर देन कि मैं रोज रोज स्टोरी लिखूं बस पिक्चर निकाल के। तो बस मैं इमेजिनेशन इंक्रीज करते रहा, तो उससे मेरी साइट इंप्रूव हो गई। अगर डब्ल्यूएटी की बात करूँ तो उसके लिए भी सेम, उसके लिए मैं डेली 15 to 20 वर्ड्स लिखता था, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस से हो जाता है इंप्रूव। एसआरटी तो नेचुरली बाहर आती है, तो उसकी मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। और एसडी के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया और पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। ओके, राइट, दैट वाज अ रियली नाइस वे यू प्रिपेयर्ड फॉर साइक टेस्ट। तो आपने टैट, वैट, एसआरटी और एसडीटी में कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हर एक पार्ट से? इसमें मैम टीएटी में सारी पिक्चर्स की थी, एंड डब्ल्यूएटी में सारे वर्ड्स। एसआरटी मैंने 47 करी थी, और एसडी में मेरा ये था कि जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं कि पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, एंड व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ एंड व्हाट वी वांट टू बिकम, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी वांट टू बिकम। तो जो मेरा 5th पार्ट था वो पूरा छूट गया था, बट मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं ज्यादा। पहले 4 पार्ट ठीक थे और बाकी टैट वैट एसआरटी ठीक थी, तो बस यही था। बाकी मैंने अपकमिंग टास्क पे फोकस किया, क्योंकि मैंने जनरली देखा है अगर किसी कैंडिडेट्स का कुछ चीज गलत हो जाता है, तो वो उसके बारे में चिंता करने लगा था कि अब मेरा क्या होगा, वो आगे वाले टास्क पे फोकस नहीं करता है। तो ये एक और टिप देना चाहूंगा, अगर तुम्हारा कुछ छूट गया है, कोई टीएटी में पिक्चर भी छूट गई है, एक पिक्चर, एक मेरा फ्रेंड था उसकी टीएटी में पूरी पिक्चर छूट गई थी, फिर भी वो रिकमेंड हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ छूट गया तो तुम रिकमेंड नहीं होगे, बस आगे जो आने वाले टास्क है उसको अच्छे से परफॉर्म करो। Okay, that's a great tip. So Karan is giving you guys a lot of tip जो भी देख रहे हैं ये particular episode को, तो you can guys jot the things down और ये याद रखना, क्योंकि Karan is right, don't think about what you have done in the past, don't think about what you're going to do in the future, just focus in the present. यही सबसे important चीज है एसएसबी में। Absolutely. तो अभी Karan, आपने ग्रुप टास्क के लिए कैसे प्रिपेयर किए थे? क्योंकि बहुत व्यूअर्स यहाँ पे है जो कभी कभी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या फिर भी ऑफलाइन कोचिंग ले रही है या फिर अपने से प्रिपेयर करे, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि बाकी तो सब कर लेंगे लेकिन ग्रुप टास्क के लिए कैसे प्रिपेयर करें? हम ग्रुप टास्क के लिए मैं 14 डेज ऑफलाइन कोचिंग ली थी, जिससे कि थोड़ा सा आउटडोर टास्क का मतलब पता चल गया था कैसा होता है। उसके अलावा यूट्यूब में भी काफी सारी वीडियोस है, हम उनसे भी देख सकते हैं। प्लस जैसे कि काफी सारे टेलीग्राम या ऑनलाइन हमें पिक्चर्स मिल जाती है जीटी ऑब्स्टिकल्स की, तो उनको मैं देखता था, सोचता था, उनमें आइडियाज लगाता था इसको हम कैसे कर सकते हैं। प्लस हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि टीम स्पोर्ट्स में या कुछ करिकुलर एक्टिविटीज में, जिसमें कि पूरा ग्रुप के साथ हम कोई कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा जो ग्रुप टास्क का करने की एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। ओके, आपका परफॉर्मेंस कैसा था ग्रुप टास्क? मैम मेरा एवरेज परफॉर्मेंस था, जैसे कि मैंने बताया मेरी हेल्थ थोड़ा खराब थी, बट सेटिस्फैक्टरी लेवल तक थी। आउटडोर टास्क में पीजीटी एचजीटी काफी अच्छा परफॉर्म किया था मैंने, आइडियाज भी काफी बढ़िया थे। तो
ओके, तो जी। आप कोई फिटनेस रूटीन जरूर फॉलो किए थे जिसके लिए ग्रुप टास्क में काफी हेल्प हुआ था, तो क्या था आपका फिटनेस रूटीन? मॉर्निंग में मैम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता था, स्किपिंग, जॉगिंग एंड एक्सरसाइजेस, एंड शाम को रनिंग कर लेता था, वॉलीबॉल खेल लेता था दोस्तों के साथ। तो बस यही था मेरा फिटनेस रूटीन। ओके, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है ना, नो फिटनेस मैम। फ्रीक नहीं कि यू नो दोज ऑफ यू आर वाचिंग दिस, आपको ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम लोगों को यू नो प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने फिटनेस रूटीन बनाना चाहिए, क्या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप एवरेज रनिंग या कोई एक्सरसाइजेस भी कर लेते दैट्स मोर देन इनफ, राइट यस करण? मैम। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जीडी और लेक्चरेट के लिए आपने घर से कैसे प्रिपेयर करके गए थे? जीडी और लेक्चरेट के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है नॉलेज। तो मैं करंट अफेयर्स को फॉलो करता था, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था, और यूट्यूब में भी काफी सारे चैनल्स हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स देते हैं। तो मैं उनको वीडियोस को देखता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, और उनके नोट्स बनाता था कॉपी में। तो इससे मेरा नॉलेज पार्ट और जो सेल्फ ओपिनियन पार्ट है वो इम्प्रूव होता था। प्लस मैं कभी कभी ऑनलाइन गूगल मीट पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जीडी कर लेता था, लेक्चरेट भी करता था। और लेक्चरेट की एक और बात इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज के साथ साथ अगर हम कितना फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली अपना लेक्चरेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यही था। ओके, तो जीडी और लेक्चरेट में आपको कौन से टॉपिक्स मिले थे? जीडी में हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि इंडिया के पास क्या ऐसी चीज स्ट्रेंथ है जो कि नेबरिंग कंट्रीज के पास नहीं है। तो उसकी हमारे पास लीड्स थी सेकुलरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स, एंड एक और चीज मैं अभी मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है। एंड सेकंड था कि आजकल के यूथ्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल है बट वो बाहर नहीं आ पाता है। तो उसका 3 लीड दिए गए थे हमारे पास: डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ गाइडेंस एंड पुअर माइंडसेट। अगर मैं लेक्चरेट की बात करूँ तो मेरे पास टॉपिक्स थे साउथ चाइना सी, सेकुलरिज्म, एंड इंडिया, हाउ टू विन फ्रेंड्स, एंड फोर्थ टॉपिक मुझे मैम याद नहीं है अभी। तो मैंने सबसे इजी टॉपिक पे बोला था लेक्चरेट, हाउ टू विन फ्रेंड्स। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर लेक्चरेट पे हमें किसी अच्छे टॉपिक के बारे में नॉलेज भी नहीं है, लो लेवल टॉपिक भी बोल रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल रहे हैं टाइम लिमिट में 3 मिनट तक, तो हो जाता है, उसमें कुछ बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, जीपी के लिए आपने कैसे प्रैक्टिस किया? क्योंकि जीपी बहुत सारे कैंडिडेट्स को हार्ड लगता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ रहता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना रहता है, उसका सोल्यूशन खुद से लिखना होता है, फिर ग्रुप डिस्कस करके कॉमन सोल्यूशन में रीच होता है, तो बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है जीपी का जो सेशन रहता है। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सेम जैसे मैंने बताया, मेरा एक ग्रुप था दोस्तों के साथ, तो वीक में एक बार ही हम जीपी का सेशन रख लेते थे जिसमें कि हम इसको टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करते थे। उसी से मैंने इम्प्रूव कर लिया था। अच्छा, जीपी का परफॉर्मेंस आपको आपका कैसा रहा था एसएसबी में? किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिए गए थे? जनरली जीपी में 4 प्रॉब्लम्स दी जाती है। पहली काफी बड़ी प्रॉब्लम दी जाती है कि जैसे कोई, नहीं, पहली प्रॉब्लम दी जाती है कोई इंजर्ड पर्सन की प्रॉब्लम दी जाती है। तो सेम हमें भी था कि एक इंजर्ड पर्सन हमारे सामने। सेकंड था कि कोई फॉरेस्ट में स्मगलिंग हो रही है। थर्ड था कि जो ट्रेन का रेलवे ट्रैक है वो टूट चुका है। और फोर्थ था किसी पर्सन की कैटल गुम हो गई है। तो यही मेरे पास 4 सिचुएशन दी गई थी जिसको कि मैंने प्रायोरिटीज के साथ रखा। उन सभी को अपने ग्रुप को प्रॉपर मेंबर्स में डिवाइड करके सॉल्यूशन निकाला। ओके, कोई फिश मार्केट सिचुएशन हुआ था आपके जीडी या जीपी में? मैम जीडी तो काफी स्मूथ चला था। जीरो फिश मार्केट था हमारा जीडी में। एवरीबडी वाज एबल टू गिव द इनफ पॉइंट्स। सबके पास जितने पॉइंट थे उसने अपने पॉइंट दिए जीडी में, बट यस जीपी में फिश मार्केट था। तो आपने हैंडल कैसे किया था वो फिश मार्केट को? जस्ट जैसे ही फिश मार्केट में एक सिचुएशन हमेशा आती है जब ग्रुप थोड़ा शांत हो जाता है, जब 1 या 2 पर्सन बोल रहे, तो उसी समय मैं जीपी में जीडी में एंटर करता था, फिर अपने पॉइंट देता था। तो ये- Okay, that's really nice because most of the candidates face a lot of difficulty जब फिश मार्केट होती है। तो बहुत लोगों का यही रहता है, डर रहता है कि फिश मार्केट को हैंडल कैसे करें। So it's a very good point guys, आप लोग के अप्लाई कर सकते हो। You just have to wait कि you know सब लोग जो चिल्ला रहे हैं उनका वॉइस थोड़ा सा डाउन हो जाए, you can grab the opportunity and you can come up. ओके, सो करण, अभी हम लोग शिफ्ट करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की तरफ। अगेन कैंडिडेट्स को डर रहता है क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू 1-on-1 होता है, बिल्कुल इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थ्रो करते हैं एंड यू नो कैंडिडेट्स दे गेट अ लिटिल बिट नर्वस। तो आपका प्रिपरेशन कैसा था पर्सनल इंटरव्यू के लिए और आपका परफॉर्मेंस कैसा था? यस मैम, अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू को डिवाइड करूँ तो जनरली 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले हमारा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, देन थोड़ा बहुत डिफेंस का पूछते हैं, देन करंट अफेयर्स पे जाते हैं। तो मैंने वही किया। सबसे पहले
अपने पर्सनल को PI फॉर्म निकाला, उसको फिल किया, फिर सोचा कि हाँ इस चीज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको नोट डाउन करता था कॉपी में और उनके आंसर्स लिखता था। तो इस चीज से मैंने प्रिपेयर किया। प्लस अगर मैं डिफेंस का नॉलेज बोलूँ तो यूट्यूब में या काफी सारे हमें पीडीएफ मिल जाते हैं अलग अलग जगह से, तो उनको मैं नोट डाउन करता था, अपना डिफेंस नॉलेज इंक्रीज करता था। प्लस करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं काफी सारे यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़पेपर को फॉलो करता था और उनके भी नोट्स बनाता था। तो अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू पे आऊँ तो वो मेरा स्टार्ट हुआ था CIQ से, जो कि रैपिड फायर राउंड होते। सबसे पहले मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबीज, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। फिर देन सेकंड वो आए थे फैमिलीज पे और नेबरहुड, इन क्वेश्चंस पे आए थे। देन मेरे से थोड़ा बहुत डिफेंस का क्वेश्चन पूछे थे। और जैसे कि TSSB में, हाँ एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि टेक्निकल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं TS में पर्सनल इंटरव्यू। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा था रूम में, इंटरव्यू रूम में, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि अच्छा तुम कोटद्वारा उत्तराखंड से, तो तुम यहाँ ट्रेन से आए, तो कितना डिस्टेंस था, कितना टाइम था। देन उन्होंने मेरे को बोला कि स्पीड कैलकुलेट करो। फिर उन्होंने डिस्टेंस और टाइम दोबारा चेंज किया, फिर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दोबारा बोला। ऐसे उन्होंने काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, फिजिक्स के भी पूछे, लॉज ऑफ मोशंस, फोर्स, काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। देन उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे। लेट सपोज कि इमरान खान क्यों फेमस हुआ था अभी न्यूज में, ईरान क्यों फेमस था, इस टाइप के क्वेश्चंस। और थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में भी या वर्ल्ड मैप पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो जैसे कि लेट सपोज उन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम्हारी पिछली SSB गांधीनगर गुजरात में थी, तो गुजरात के नेबरिंग स्टेट्स बताओ। फिर बोला गुजरात के सामने कौन सा सी है, तो मैंने बोला अरेबियन सी है। फिर बोला इंडिया के अपोजिट साइड में कौन सा है, मैंने बोला बे ऑफ बंगाल में। फिर उससे वो पूछने लग गए काउंटर क्वेश्चन कि बे ऑफ बंगाल को बे ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, अरेबियन सी को अरेबियन सी क्यों कहते हैं, अरेबिक कंट्रीज के नाम बताओ। तो यही था जो मैं आंसर बोल रहा था, उसी से काउंटर क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। और कुछ उन्होंने डिफेंस भी पूछे थे, लाइक कोर ऑफ सिग्नल का क्या फंक्शन है, आर्टरी का क्या फंक्शन है, इंडिया के पास कौन कौन से टैंक्स है। तो इस तरह से मेरा पर्सनल इंटरव्यू चला था। तो जो आंसर मेरे को आते थे कॉन्फिडेंटली उनका आंसर दिया, जो नहीं आते थे उनका भी आंसर कॉन्फिडेंटली दिया कि सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल रीड अबाउट दिस। ग्रेट। तो आपका इंटरव्यू मोरलेस मतलब बहुत अच्छा हुआ था, राइट? यस मैम। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, हमारे दर्शक को भी जानना चाहती हूँ इन चीजों के बारे में, कि जब एनडीए के लिए आप गए थे, क्योंकि आपका लास्ट अटेम्प्ट एनडीए के लिए था, तो एनडीए पर्सनल इंटरव्यू और TS एंट्री के लिए पर्सनल इंटरव्यू में कोई डिफरेंस आपको नजर आया था रिगार्डिंग द क्वेश्चंस? नो मैम, बस एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चन था डिफेंस का। तो थोड़ा सा AFSB में एयरफोर्स रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे और यहाँ आर्मी से रिलेटेड पूछे थे, बाकी एवरीथिंग वाज सेम। ओके, राइट राइट। सो दैट विल बी, आई थिंक व्यूअर्स हु वांटेड टू नो दिस, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा उनको भी, क्योंकि डिफरेंस पता चलेगा, है ना? ओके, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस डे इज द अल्टीमेट रिजल्ट डे, द D डे, है ना? सब लोग एकदम बेकरारी से वेट करते हैं कि क्या होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस डे कैसा था? क्या आपको वेट करना पड़ा था? और फिर क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे? आपका फीलिंग क्या हो रहा था उस समय? इसमें मेरे कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा लंबा चला था, अराउंड 5 to 7 मिनट्स में बैठा था बाहर पे। फिर मैं अंदर गया तो मेरे से स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि मैंने बताया मैं ड्रॉप ईयर लिया था अपने 12th क्लास के बाद, तो वो मैं अपना मेरा बैकअप प्लान था कि मैं JEE एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करूंगा साथ NDA के साथ साथ। तो उन्होंने मुझसे यही ड्रॉप ईयर के बारे में पूछा कि क्यों तुमने ड्रॉप लिया, क्या तुम ऐसा कर रहे हो इस ईयर की जो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्या क्या रूटीन तुम फॉलो करते हो, कहाँ से तुम पढ़ते हो। देन उन्होंने मुझसे एक SRT पूछी कि अच्छा अभी तुम कॉन्फ्रेंस के बाद घर जाओगे, लेट सपोज तुम्हारा वैलेट खो गया, तुम पैसे कैसे मैनेज करोगे। फिर मैं जो भी आंसर दे रहा था फिर उसमें और सिचुएशन चेंज करते जा रहे थे, तो और प्रेशराइज कर रहे थे, तो मैं उस हिसाब से आंसर देते जा रहा था। फिर एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रेट योर परफॉर्मेंस GT और साइक इंटरव्यू की। तो मैंने रेट किया कि साइक फर्स्ट में, इंटरव्यू सेकंड में, एंड थर्ड में GTO। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्यों GTO तुम लास्ट में रख रहे हो। तो मैंने बताया कि सर मेरी थोड़ा हेल्थ खराब थी, तो आई वाज फीलिंग लेस एनर्जेटिक, तो उस वजह से मैं थोड़ा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया GTO में, इसलिए मैं GTO को अपने लास्ट में रखता हूँ। तो इसी के साथ मेरा कॉन्फ्रेंस एंड हो गया था। ओके, नाइस नाइस। तो आपको ऐसा लग रहा था कि अब क्या होने वाला है? यानी कि जो प्रेशर वो लोग डाल रहे थे, आर यू कमिंग अंडर द प्रेशर? नो मैम, इस कॉन्फ्रेंस से पहले थोड़ा मुझे लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, मैं थोड़ा डाउट में था क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस मुझे लगा कि इतनी अच्छी नहीं गई। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबी चली, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो सकता है रिकमेंड। और फिर जब मैंने सही से आंसर दिए, सेटिस्फैक्टरी आंसर दिए, तो फिर मुझे लगा कि हाँ अब तो हो जाएगा।
Okay, that's really nice because it really happened. Okay, Yes, ma'am. Karan, आपने कहा कि आप ड्रॉप आउट थे. I mean, you took a gap of 1 year, right? आपके क्लास 12 के बाद for Yes, ma'am. preparation. तो बहुत सारे हमारे दर्शक है जिनको ये ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं ये बात बोलूं एसएसबी में जाके कि 1 साल का मैंने ड्रॉप किया या गैप लिया, क्या ये मेरे एसएसबी के परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा या नहीं? तो आपको क्या लगता है? नहीं मैम, इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस हमें रीजन देना आना चाहिए कि हमने क्यों ड्रॉप लिया और क्यों वो हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने अपना बताया कि वो मेरा बैकअप प्लान है। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस सबका एक बैकअप प्लान होना चाहिए, तो मेरा बैकअप प्लान था मैं जेई दूंगा, एक अच्छा सा इंजीनियरिंग कॉलेज लूंगा। तो मैंने उनको बताया, फिर ये स्पेसिफाई किया कि क्यों मैं इस ड्रॉप को अच्छे से यूज कर पाऊंगा। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जो ड्रॉप ईयर में बस टाइम पास करते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो वो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ठीक से इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते कि हाँ मैंने रियली में ड्रॉप ईयर कुछ अच्छा करने के लिए लिया है। तो यही था, बस कन्विंस करना आना चाहिए। ओके, विच आई थिंक अगर आपके पास है रीजंस तो आप बेफिक्र होकर बताओ, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है. दैट्स आई थिंक व्हाट करण वांटेड टू से. ओके, करण, आपका ग्रुप कैसा था और आपको क्या लगता है कि एसएसबी में जो जिस तरह की ग्रुप आपको मिला था, इट रियली हेल्प्ड इन योर रिकमेंडेशन और नॉट? यस मैम, इट रियली हेल्प मी। जैसे ही मैंने जीडी का बताया था अपना जीटीओ में, तो काफी हेल्पफुल ग्रुप था। जीडी भी काफी स्मूथ चला था हमारा, और ग्रुप टास्क में काफी कोऑपरेशन था। और अगर मैं टास्क से बाहर हूँ, जैसे कि मेरी हेल्थ खराब थी, तो मेरे ग्रुप वालों ने काफी सपोर्ट किया। वो मेरे को मेडिसिन देते थे मेरे लिए, जैसे कैंडिडेट्स में ऐसे फ्रूट्स वगैरह ले आते थे। मुझे जैसे ओआरएस का सॉल्यूशन दे दिया, तो मेरी काफी टेक केयर करते थे जब मेरी हेल्थ खराब थी। तो मैं अपने ग्रुप को थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर दैट। ओके, सो एक्चुअली हम लोग कंसिडर करते हैं अपने ग्रुप को एज राइवल, कि हाँ इनके साथ मेरा राइवलरी चल रहा है, पर ऐसा आई थिंक एसएसबी में नहीं होता है, बिकॉज यू ऑल आर कॉमरेड्स, brothers in this on the same boat. यस So मैम। that's I think what they also thought, and it's a really lovely to have such a beautiful group. यस मैम। Okay. सो करण, आपका डेली रूटीन क्या था? क्योंकि आप कह रहे थे कि आपने ड्रॉप किया था, 1 साल का गैप आपने लिया था फॉर प्रेपरेशन फॉर डिफेंस, तो आपका रूटीन क्या हुआ था उस समय? इफ आई स्टार्ट माई रूटीन, तो 5:30 या 6 o'clock में मैं सुबह उठता था, फिर हाफ एन आवर या 40 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करता था, थोड़ी बहुत स्कीपिंग जॉगिंग। और फिर दिन उसके बाद फ्रेशन अप हुआ, ब्रेकफास्ट किया। देन उसके बाद मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था हर रोज मॉर्निंग में, और लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ता था ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो इम्प्रूव हो। देन मैं करंट अफेयर्स की वीडियोस देखता था, उनके नोट्स बनाता था। आफ्टर डेट मेरी जेई मेंस की जो क्लासेस थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था, तो वही क्लासेस लेता था दिन तक। फिर उसके बाद दिन का लंच करने के बाद, जैसे कि मेरी कुछ हॉबीज थी कि मैं यूट्यूब में पॉडकास्ट देखता था, या थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेता था, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, तो उन्हीं को देखता था, फॉलो करता था। देन शाम को फिर 2 घंटे के लिए मैं क्लास लेता था अपनी जेई मेंस के लिए। देन अपने दोस्त के साथ शाम को ही रनिंग के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए जाता था। फिर रात को अगेन मैं 1 आवर का सेशन डेली अपने दोस्तों के साथ करता था, जो कि एसएसबी एस्पिरेंट्स थे, जिसमें कि हम कभी पीपीटीटी प्रैक्टिस, लेक्चरेट प्रैक्टिस, जीडी प्रैक्टिस कर लेते थे। देन उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह कर लिया जेई मेंस के लिए। देन डिनर कर लिया, फिर थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, फ्रेंड के साथ बातचीत की। देन बस उसके बाद सो जाता था। ओके, रियली नाइस रूटीन. तो करण, आपने कहा कि आपके हॉबीज थे एडिटिंग और पॉडकास्ट, है ना? तो क्या यस मैम। आपको लगता है ये हॉबीज आपके एसएसबी के रिकमेंडेशन में हेल्प किया था? यस मैम, और भी थी, साइकिलिंग और बुक रीडिंग भी थी। तो अगर मैं बताऊँ वाचिंग पॉडकास्ट, तो मैं डिफेंस रिलेटेड पॉडकास्ट काफी देखता था। लेट्स सपोज किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की देख लिए, या कोई डिफेंस सर्विंग पर्सनल है, रिटायर्ड पर्सनल है, उनके पॉडकास्ट देख लेता था। तो उससे मेरा ये होता था कि नॉलेज इंक्रीज होता था, डिफेंस नॉलेज। और जैसे मैं साइकिलिंग करता था, उससे मेरी फिटनेस इंप्रूव होती थी। बुक्स रीड करता था, तो उससे मेरी इमेजिनेशन इंक्रीज होती थी, और जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकेबलरी, ये भी इंप्रूव होती थी। ओके, आपका फेवरेट बुक कौन सा था? फेवरेट बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। ओके, तो आप उस बुक को आपको फेवरेट क्यों था वो? बिकॉज एक तो पहले ही मेरी फर्स्ट बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, प्लस जो उस बुक की जो चीजें थी, वो मैं काफी चीजें अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता था, तो इसलिए वो मेरी फेवरेट बुक थी। ओके, तो गाइज, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ा है, करण ने पढ़ लिया, तो आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफी मोटिवेशनल बुक है ना? इट विल यस रियली मैम। मोटिवेट यू.
सो करण, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग मेडिकल्स। अभी हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेडिकल्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेडिकल्स के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे अपने आप को फिट रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या किया मेडिकल्स के लिए? आपके ऊपर क्या क्या टेस्ट, मतलब आपने क्या क्या टेस्ट दिया मेडिकल्स में? यस मैम, अगर मैं मेडिकल टेस्ट की बात करूँ तो जनरली ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट डे में मेरा हुआ था ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी एंड अल्ट्रासाउंड। तो ये आता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। फिर उसके बाद होते हैं हमारा ईएनटी, ईयर नोज थ्रॉट। तो ईएनटी में ईयर वैक्स जो चीज़ है, इसका काफ़ी कैंडिडेट्स को टीआर मिलता है। तो उनको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी तुम्हारा मेडिकल हो उससे पहले ईयर वैक्स क्लीन करके जाओ, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी कैंडिडेट्स को उस पर टीआर मिल जाता है। तो उसमें क्या फ़ायदा कि फिर 40 डेज का वेट करो फिर दोबारा क्लियर करने जाओ। तो ये चीज़ कर सकते हैं। फिर होता है हमारा आइज़ का, उसमें हमारा आई प्रेशर चेक होता है, आई विजन चेक होता है। देन होता है हमारा डेंटल। फिर उसके लास्ट में होता है मेडिसिन, जिसमें कि हमारे जो भी पहले ब्लड रिपोर्ट्स, ईसीजी, हार्ट बीट, बीपी, ये सब चेक होता है। थोड़ा बहुत हमारा स्किन भी चेक होता है कि हमें कुछ स्वेटी पाम्स तो नहीं है, ये चीज होता है। और एक और पार्ट बच गया सर्जिकल, जिसमें कि हमारे आउटर बॉडी पार्ट्स चेक होते हैं, किसी का नॉक नीस तो नहीं है, बोलेक्स तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है। तो ये चीजें चेक होती है। फिर एंड में हमारा मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है। तो एडवाइस देना चाहूंगा कि जब भी हमारा कुछ टेस्ट हो रहा है हार्ट का या ईसीजी का, तो उस समय रिलैक्स रहो, क्योंकि काफी बंदे होते हैं थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिस वजह से किसी का बीपी आ जाता है या हार्ट बीट ज्यादा आ जाता है। प्लस मेडिकल के दौरान कोई भी इंजरी वगैरह मत लो, और बैलेंस डाइट रखो, एक अच्छी डाइट रखो, फ्रूट्स वगैरह लेते रहो, कुछ ज्यादा जंक फूड वगैरह बाहर का मत खाओ। तो ये चीजें। ओके, सो दीज आर वेरी हैंडी टिप्स, क्योंकि बहुत लोगों को यही वाले चीजें जानने की जरूरत होती है। और व्यूअर्स जो हमारी एपिसोड देख रहे हैं, होप आप लोगों को भी टिप्स मिल गया होगा। सो ट्राई फॉलोइंग दिस टिप्स और आपका मेडिकल्स भी लाजवाब ही जाएगा। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके प्रेपरेशन में हाउ डिड एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हेल्प? यस मैम, एसएसबी का एक जो वेबसाइट से, जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले तो जो ओआईआर का सेट था, प्रैक्टिस सेट, उसने काफी हेल्प किया। तीनों एसएसबी में काफी सारे क्वेश्चन थे जो उससे सिमिलर थे। प्लस एक और एसएसबी क्रैक की लेक्चरेट वाली पीडीएफ है, जिसमें कि अराउंड 100 लेक्चरेट टॉपिक्स है, उससे भी मैं काफी लेक्चरेट प्रिपेयर करता था। प्लस एसएसबी क्रैक ने काफी सारे आर्टिकल्स डाले अपनी वेबसाइट पे, कि हाउ टू परफॉर्म टेट, डब्ल्यूएटी कैसे परफॉर्मेंस करना चाहिए, उन्हें मैं रीड आउट करता था। प्लस काफी सारे ये सक्सेस स्टोरीज डालते थे कैंडिडेट्स की, उनको भी मैं पढ़ता था और सीखता था, हाँ मैं क्या कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। ओके, ग्रेट ग्रेट वे ऑफ प्रिपेयरिंग, क्योंकि आपका भी सक्सेस स्टोरी बहुत ही जल्द हमारे ब्लॉग पे आ जाएगा। आई होप आ चुका है, तो आप लोग देख सकते, पढ़ सकते हैं। और करण के भी एक्सपीरियंस से आप लोग कुछ लेसन्स जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अभी जो आप एपिसोड देख रहे हो या फिर जो पढ़ोगे, दैट विल रियली रियली कम हैंडी टू यू, क्योंकि बहुत सारे टिप्स हमारे करण जी यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है करण कि आप हमारे अपकमिंग एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए कौन से टिप्स या सजेशंस देना चाहेंगे, स्पेसिफिकली उनके लिए जो आपके जैसे फेलियर्स फेस करते हुए आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट कैसा रहेगा, रिकमेंडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? उनको कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, बाकी लोगों की मत सुनो, क्योंकि बोलने वाले काफी सारे आएंगे कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ दे, कोई नहीं। कंसिस्टेंट रहो, करते रहो प्रैक्टिस, कभी ना कभी तो होगा। और ओवर डेस्परेट मत होना कि कभी भी कि इस बार रिकमेंड होके आना ही आना है। जस्ट एसएसबी में जाओ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, रिजल्ट जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करो। प्लस अपनी पर्सनैलिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहो, अपने नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी अपने ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई स्कूल में कॉलेज में ग्रुप एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इनमें ज़्यादा फोकस करो। प्लस हमेशा अपना एक बैकअप प्लान भी रिजर्व में रखा, उसके लिए भी प्रिपेयर करो। तो ये चीज़ मैं सभी को एडवाइस देना चाहूंगा। ओके, नाइस। तो अभी बहुत जल्द आप एकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो करण, तो इससे पहले आपका क्या क्या प्लान है? मैं अकेडमी से पहले, एक तो अभी मेरा एनडीए 150 का भी एसएसबी लेफ्ट है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। साथ साथ में अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि जो अकेडमी में काफ़ी फिजिकल टफनेस होती है, तो रनिंग वगैरह, स्विमिंग वगैरह सीखूंगा। प्लस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ओके, रियली नाइस करण सर। आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो ये पर्टिकुलर एपिसोड देख रहे हैं उनको भी काफी सारे टिप्स आपसे मिला है। थैंक यू सो मच करण अगेन फॉर स्पेंडिंग सच अ प्रेशियस टाइम ऑफ yours here with us and sharing all your valuable experiences. I hope that you shine in your future and done that uniform that you have been thinking of from the very early childhood, and make your family and our nation proud as well.
Thank you once more, Karan. And again, a hearty congratulations from SSB Crack Exams and SSB Crack Talks for coming here and getting recommended from TS48. Thank you so much, Karan. Thank you, ma'am. Jai Hind, ma'am. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।